Good morning, students. So we are doing chapter third, or we will start this chapter third. The name of this chapter is population composition. What is the name of this chapter? Population composition. So we will discuss about this population composition. So but first we have to know what do we mean by population. Population means male and female. They are called the population. Then composition. Composition means these are the things we will discuss about the population composition. यानी ये सारी चीजें जो आएगी ये किसका पार्ट होगी आपकी composition का पार्ट होगी. तो these things we will discuss in population composition. So first what is given about the population composition? Components. What are the components of population composition? Population composition के components कौन से बताए गए हैं? First is given sex composition, your sex ratio. Second is given age structure. Third is given literacy. Fourth is given place of residence. Fifth is given life expectancy. And sixth is given occupation. So now we will discuss about the one by one. What are these? First is given sex composition, or we are calling it sex ratio. So what are these things? Sex composition you know very well, male and female, these are called sex composition of sex ratio of a particular area. यानी उस एरिया के अंदर कितने मेल और कितने फीमेल है तो उस एरिया का वो क्या होगा, सेक्स रेशियो होगा. Then next is given age structure. Age structure we have divided into three categories. age structure को हमने क्या कर दिया, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. First we have made 0 to 14 years. These are called children. उनको हम क्या बोलते हैं, children, बच्चे बोलते हैं. Then next is given 15 to 59. These are called young or working population. Second is given, third is given 60 and above. 60 और above वाले कौन से होते हैं आपके, aged population. They are called aged population. So this is the age structure we are making in this way of a structure of any country. Then next is given literacy. Literacy का मतलब क्या होता है कि people, how much people read and write. According to our country, the person who can read and write and above 7 years we are considering or her literate. उसको हम क्या मानते हैं, literate मानते हैं. तो literacy का मतलब कि वो read और write कर सके तो उसको हम किस में लेंगे, literate person में लेंगे. Next is given place of residence. Place of residence means where a person is living, male और female, वो कहाँ पे रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं. सेकंड इज, फिफ्थ इज गिवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एवरेज एक ह्यूमन बीइंग कितने टाइम तक जीता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये क्या हो सकता है, इट मे बी ए पर्सन डाइड इन 99 years, ए पर्सन डाइड इन 25 years. So that will be the average, that is called life expectancy. Now next is given occupation. उसके बाद में क्या आता है आपका, occupation आता है. People what type of activities they are doing. They are involved in primary activities, secondary, tertiary और आपका quaternary और other activities. तो occupation के अंदर हमने देखा है कि मोस्टली रूरल एरिया में लोग किसमें होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में होते हैं. अर्बन एरियाज में मोस्टली सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज पीपल आर डूइंग. सो दीज आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन. 6 कंपोनेंट्स पॉपुलेशन कंपोजिशन के हैं जिसमें हमने डिस्कस किया इनके बारे में. नाउ नेक्स्ट थिंग इज गिवन अबाउट द सेक्स कंपोजिशन. वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्स कंपोजिशन. पहला हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेक्स कंपोजिशन, या इसको सेक्स रेशियो भी बोल सकते हैं. So how can we get the sex ratio of a particular country? For this we have made the formula. उसके लिए हमने क्या बनाए हैं, formulas बनाए हुए हैं. तो जो इंडिया के अंदर फॉर्मूला यूज होता है उसमें क्या होता है, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. ये इंडिया के अंदर यूज होता है. यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन कम है इसलिए फीमेल पॉपुलेशन को ऊपर रखा जाता है, मेल पॉपुलेशन को नीचे रखा जाता है. तो इसमें कैसे निकालेंगे, इंडिया के अंदर फीमेल पॉपुलेशन सेक्स रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. वर्ल्ड में कैसे निकाला जाता है, इट इज अपोजिट टू इंडिया. अपोजिट होता है इंडिया का. यहाँ पे क्या होता है, मेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. यहाँ पे क्या होगा आपका, मेल पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे. यानी इट इज अपोजिट ऑफ इंडिया. इंडिया में फीमेल पॉपुलेशन अपर साइड होती है और वर्ल्ड में मेल पॉपुलेशन होती है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट इज गिवन फेवरेबल सेक्स रेशियो एंड अनफेवरेबल सेक्स रेशियो. दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. फेवरेबल मीन दोज कंट्रीज हैव द सेक्स रेशियो इक्वल, पर्टिकुलरली इक्वल, यानी जिन देश कंट्रीज के अंदर सेक्स रेशियो इक्वल है, यानी मेल और फीमेल के सेक्स रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो दे आर कॉल्ड फेवरेबल सेक्स रेशियोज. उस कंट्रीज को क्या बोलते हैं, फेवरेबल सेक्स रेशियोज बोलते हैं. मोस्टली इन यूरोपियन कंट्रीज यू कैन फाइंड आउट द फेवरेबल सेक्स रेशियो. यूरोपियन कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्टली क्या मिलता है आपको, सेक्स रेशियो है वो आपको फेवरेबल मिलता है. यूरोपियन कंट्रीज आई एम राइटिंग हियर, जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, वहाँ पे तो जो आपका सेक्स रेशियो है फीमेल का ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ मेल. यहाँ पे क्या है, यूरोप में कंट्री में ज्यादा होने का कारण क्या है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आर गिवन इक्वल टू द वीमेन आल्सो. अनफेवरेबल सेक्स रेशियो इज मेनली फाउंड इन दोज कंट्रीज देयर स्टेटस ऑफ वीमेन इज नॉट गुड. लो है स्टेटस जहाँ पे, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अनफेवरेबल सेक्स रेशियो मिलेगा. ये मेनली आपको कहाँ मिलता है, एशियन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा.
जो पुअर कंट्रीज है या आपकी एशियन कंट्रीज जिसमें है, तो इन दोज कंट्रीज देयर इज ए अनफेवरेबल सेक्स रेशियो, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अनफेवरेबल मिलेगा, वहाँ पे वीमेन की कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। जैसे आप हमारे कंट्रीज में आप देख सकते हो कि जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो है 940 ओवर 1000 मेल, यानी 60 कम है, तो इसको हम अनफेवरेबल तो नहीं कह सकते, बट इट इज लेस, कम है, इट शुड बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज गिवन अबाउट द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड के सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो इट इज 990 ओवर 1000 मेल, यानी पूरे इंडिया वर्ल्ड की बात की जाए तो वहाँ पे क्या मिलता है 990 है ओवर 1000 मेल। इसके बाद में हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर तो लातविया, दिस इज द नेम ऑफ वन कंट्री, लातविया इन यूरोप के अंदर है, जहाँ पे सेक्स रेशियो आपका क्या बताएगा 1187 फीमेल ओवर 1000 मेल, यानी 187 फीमेल वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको मिलेगा लातविया का यूरोप के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। देन लोवेस्ट है वो एशिया के अंदर यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट जिसको बोला जाता है, वहाँ पे सबसे लोवेस्ट है 468 ओवर 1000 मेल। सबसे कम अगर सेक्स रेशियो किसी कंट्री का है तो वो किसका है आपका यूएई का है, जहाँ पे फीमेल का 468। मोस्टली अरेबियन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पे आपको सेक्स रेशियो फीमेल का वो कम देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वीमेन का स्टेटस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इन कंपेरिजन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। So today we have discussed about the population composition and components of population composition. ये components of population composition जितने भी हमने पढ़े, why we are studying these components? We are studying so that a country, those who are making the planning for the development of their country, so they have to know these things. उसको इन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। अगर इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो किसी भी देश के डेवलपमेंट को आप कंसिडर नहीं कर सकते, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सेक्स कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है जब भी कोई देश के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग बनेगी। तो फॉर दिस वी दे हैव रिक्वायर्ड दीज थिंग्स। अगर किसी भी देश के अंदर आपको पता है कि सेक्स कंपोजिशन सही नहीं है मेल और फीमेल की, तो उस कंट्रीज में आपको पता है कि डेवलपमेंट की संभावनाएं धीरे कम हो जाती है। एज स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो दोज कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। लिटरेसी रेट जो आपका लिटरेसी रेट जिस कंट्रीज की ज़्यादा है, तो यू नो वेरी वेल दे विल बी द नो ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर वे एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग इन प्रॉपर वे, इसलिए वो सही तरीके से करेंगे। लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रूरल और अर्बन एरियाज, रूरल एरिया में मोस्टली लोग किसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में, अर्बन में कहाँ पे होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिस कंट्री की ज़्यादा है, इट मीन्स देयर हॉस्पिटल फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटीज आर गुड, सो दैट्स वाई दैट कंट्रीज डेवलप कंट्रीज, जिस देश के अंदर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, सैनिटेशन अच्छा है, तो उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। देन ऑक्यूपेशन भी एक मेन रोल प्ले करता है, जहाँ पे सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, दे आर ऑल्सो इन डेवलप्ड कंट्रीज। So then we have discussed about the sex composition. These are the formulas, India and world. Then we have discussed favorable and unfavorable. And last I have explained about the sex ratios of the India and world and highest and lowest. So you will read this from your book also and revise it from the this video also. Thank you. Have a nice day.